थोड़ा कैमरा पीछे, अनिल पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आओ थोड़ा थोड़ा। पीछे पीछे थैंक यू उनकी महाराज। अपना आश्रम है क्या? कल्याण भी बहुत बड़ा है। अपना आश्रम हो जाओ तो बुजुर्ग लोग रहते हैं। वो मेरा दूसरा। अच्छा दूसरा। और ये यहाँ हम बच्चे संभाल रहे हैं। अच्छा। और वेट वेट भाई, आप लोग पीछे रहो थोड़ा। बस महाराज जी। ठीक है, हो गया हो गया। डन, चलिए। Next, I request Shri Mangal Prabhat Lodha ji to accept our welcome. Leader, scholar, and visionary thinker of the global Hindu community, Swami Vijnanand Ji represents Prabhat Lodha ji. Shri Mangal Prabhat Lodha ji has played a decisive role in Maharashtra's governance landscape. A former cabinet minister, his work in skill development, entrepreneurship, employment generation, and urban development reflects a governance style marked by discipline, clarity, and results. Deeply rooted in Indian values and forward-looking in vision, he represents leadership that balances growth with responsibility. Your meaningful presence has truly enriched today's program, sir. Journalism is the voice of truth that dares to question and the conscience that refuses to be silent. It bridges the distance between power and people, giving voice to those unheard. In an age when journalism often traded conscience for convenience, Dr. Vaidehi Taman chose the harder path, the uncompromising path of truth. A fearless journalist, she built her legacy, not by quoting power, but by resisting it. As founder, editor of Afternoon and The Democracy, she ran a completely self-funded newspaper for over 21 uninterrupted years. A feat rare enough to be recorded in the World Book of Records, and significant institutions such as the Times of India, Free Press Journal, and Sunday Observer, defined by clarity, courage, and ethical precision. Recognized by Forbes as a change maker, she demonstrated that journalism can be bold without being abrasive and principled without compromise. Beyond the newsroom, her commitment to Seva found expression as the author of 8 best-selling books, a healer dedicated to reviving authentic Ayurveda,
through Ved Arogyam and a mentor shaping lives through spiritually grounded de-addiction and wellness initiatives. Her work in Gurukul-based Vedic education reflects a deeper concern for preserving India's civilizational and cultural continuity. Across every role she has embraced, editor, author, healer and a teacher, one constant belong to the corridors of anyone. Afternoon Voice was started with an intention to give freedom or just release people from the bondage of intellect. So today I am just introducing my company in short. Vigyananand ji, Lodha ji, thanks a lot for coming here, but I want to apologize also. We told people that you people will be arriving by 8:50, so people, you know how they are, like they said, okay, so they are arriving now. So this organization started with an intention to give vocal training to the journalists. हमने पिछले 20 साल में 100 से भी अधिक जर्नलिस्ट को मेंटर किया है और आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है और वो सारे आज सब तरफ काम करते हैं और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे आदमी सब तरफ है, चाहे वो पब्लिक टीवी हो, चाहे डेक्कन क्रॉनिकल हो, चाहे कोई भी मीडिया हो जहाँ पे आफ्टरनून में ट्रेन किए हुए बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब मैं बुक पे आती हूँ। आज जो बुक मैंने जो लिखी है वो खासकर यंग जनरेशन के लिए, वो जनरेशन जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना नहीं चाहता और 3 घंटे की मूवी जो है वो कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाता। सावरकर जी को समझना बहुत ज़रूरी, इसलिए रेलेवेंट और ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव्स अपने अपने तरीके से स्प्रेड करके एक बहुत बड़ी वैचारिक डैमेज, ऐतिहासिक डैमेज और सोच भी छोड़िए, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी परंपरा, हर चीज़ पे एक आघात किया हुआ है। हिस्टोरियंस जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई की, जिन्होंने अखंड भारत की चाहत रखी, जिन्होंने हिंदुत्व को सजा के रखा, जो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र देखना चाह रहे थे, उनकी सोच पर ही आजकल आघात हो रहा है और ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे। तो नेमिंग और शेमिंग सिर्फ प्रेजेंट नेताओं के लिए ही नहीं है, हिस्ट्री में जाके भी डिस्टॉर्ट किया गया है। सावरकर जी की किताब लिखते हुए मैंने सिर्फ यही बताया था कि 2 स्टेट नेशंस की जरूरत क्यों थी, उन्होंने माफी क्यों मांगी थी, या उनकी विचारधारा इस अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र को लेके क्यों थी, और आज की जनरेशन को वो मर्यादा सिखाना क्यों जरूरी है कि कुछ चीज़ें जो हमारे ऊपर थोपी गई है वो सब सहिष्णुता में बैठती नहीं है और ना ही वो चीज़ें इतनी आसान है जितनी आसानी से आज हमने अपनी लाइफस्टाइल में लाई है। आपको अगर अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने होने के लिए एक हिंदू बनकर अगर लड़ना होगा तो हिस्ट्री में झांक कर उन विचारों को, उन हिस्टोरियंस को एक बार तो आपको रेफर करना ही होगा और उनके कंट्रीब्यूशन को आप भूल नहीं सकते। ये मैसेज मुझे इस बुक में से यंगस्टर्स को देना था। सावरकर मेरे विचार के बहुत करीब है क्योंकि मैं गिरगांव में पली बड़ी हूँ और वहाँ पे सुबह उठने के बाद मेरे घर के सामने, हाँ जी बिल्कुल, बट गिरगांव पूरा सावरकर सेंट्रिक है। तो सुबह उठते ही हमारे यहाँ गाने लगते थे, ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला। प्रमोद नवलकर जी के यहाँ पे तो ये गाना बजते ही रहता था। और इसी तरह से गिरगांव में जितने भी लोग थे वो सावरकर को तात्या कहते हैं, सावरकर नहीं कहते। तात्या के जो गाने हैं, तात्या की जो सीख है वो बच्चों को बचपन से ही बाल रोटी की तरह पिला दी जाती है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि वहाँ पे हिंदुत्व अभी भी बचा हुआ है और बहुत अच्छी तरह, विदाउट कल्यूडेड। And I understand, Savarkar never said hate any community. Savarkar never said divide anyone, but he said protect yourself. And when you protect yourself, there are barriers. मेरी नानी एक बचपन में बहुत प्यारी कहानी सुनाया करती थी कि जब तक तुम्हारे गर्दन पर किसी के हाथ नहीं आते हैं तुम किसी को सताना मत, लेकिन कोई गर्दन पर हाथ डाल रहा है तो उसके हाथ पकड़ने की ताकत जरूर रखना। और यही हमें करना है और यही सावरकर जी भी सिखाते थे। So I just don't want to take much time because both the guests have to quit early, but I would like to just take few names.
आप बहुत लेट आए गांधी जी। गांधी जी और सावरकर बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है मयंक गांधी जी, बट आप आगे आके बैठ सकते हैं। एंड हमारे बीच में एडवोकेट झा जी ने, जो बहुत बड़ा नाम है, स्पीकर्स विल कम वन आफ्टर वन। He also contributed a lot for the fight of Sanatan. So we all are here today to discuss Savarkar, and I would be more interested in listening it from Swamiji and Lodha ji. So I will take a seat. Thank you. Thanks a lot for coming here. Thank you. मैडम होल्ड सर। थैंक यू। महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आज इथे ज्यांचे हस्ते हा रिक्लेमिंग भारत वीर सावरकर विजन फॉर ए रिसायलेंट हिंदू राष्ट्र यांचा लोकार्पण झाला, असे तुमच्या माझे सर्वांसाठी अतिशय मोठा ज्यांच्या विश्वामध्ये नाम आहे आणि हिंदुत्वाचे एक आधुनिक सावरकरच्या श्रेणीमध्ये ते जे काम करत आहे असे स्वामी विवेकानंद जी, ज्याने हा पुस्तक लिहिण्यासाठी फार प्रयत्नपूर्वक हा पुस्तक लोकांसमोर आणली आहे, असे डॉक्टर विजय तमन, इतनी मोटी संख्या में जमलेले माझे बंधु भगिनी। जब आप विज्ञानंद जी को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका ये आना कितना सार्थक हुआ। बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम लेने चाहिए, पर मैंने विज्ञानंद जी से माफ़ी मांगी है कि मुझे कार्यक्रम में और थोड़ा जल्दी पहुंचना है। मुझे मालूम है कि मुझे कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाता, मेरी पोस्ट को बुलाते हैं, और इसलिए जब तक मंत्री हूँ तब तक सब लेके जाना पड़ता है, नहीं तो मैं भी पीछे सीट पर बैठा बैठा भाषण सुनता रहूँगा। तो ये किताब, इस किताब का कार्यक्रम में विज्ञानंद जी का आना और उसके बाद भी कुछ खाली कुर्सियाँ, हाँ नहीं, ये मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ और आपकी तारीफ एक कहानी से करना चाहता हूँ कि कहानी सबने सुनी है, मैं नई नई कहानी सुना रहा हूँ। जंगल में आग लग गई, सब जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी भर भर के आग बुझाने का प्रयास करने लगी, सारे जानवर उस पर हंसने लगे। चिड़िया तो पागल हुई है, इतने बड़े आग तेरी चोंच के पानी से कब बुझेगी। चिड़िया का जवाब था, ये जंगल मेरा संसार है, मेरा घर है, मेरे लिए सर्वस्व है। आग बुझे कि न बुझे, मेरा तो काम है प्रयास करना, मैं तो अपना प्रयास करूंगी। विजय तमन्नी जी वही प्रयास कर रही है। की आग, अलगाववाद की आग, आतंकवाद की आग, भारत को हर तरीके से परेशान करना, कमजोर करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, इस सब के बीच में आग बुझे कि न बुझे, ये भारत तो मेरा देश है, इसलिए मैं तो अपना काम करूंगी। ऐसा वो चिड़िया की चोंच जैसा इससे ही पानी बुझा बुझा कर ये काम कर रही है, और उसी के अंदर आपने ये किताब लिखी है, इसलिए मैं आपकी भरपूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। वैसे उस कहानी का अंत ये है कि चिड़िया की बात सुनकर हाथी घोड़े सभी लौट कर आ गए, किसी ने पूंछ से, किसी ने सूंड से आग बुझाई, और थोड़े दिनों में जंगल बच गए, आग बच गई, हमारा भारत भी बच जाएगा, आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आवाज़ देना चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में 2 मिनट बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। किताब के बारे में मुझे बोलने का हक नहीं, वो स्वामी जी बोलेंगे। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप इनके नज़दीक आएंगे, जैसे जैसे आप इनको सुनेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि भारत अभी अनाथ नहीं हुआ है। भारत में अभी भी एक नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली में बैठे हैं, एक योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, पर एक दोनों का मिश्रण
जिसमें आग भी है, तप भी है, तपस्या भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वैसा मिशन पूरे भारत में नहीं सारी दुनिया में घूम घूम के हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है। और वो और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी। दुनिया के सभी बड़े देशों के अंदर इन्होंने हिंदुओं की बड़ी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाँ के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और सारे बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया। बड़े बड़े लोगों का भाग लेने का महत्व नहीं है, महत्व इस सोच का है। कभी किसी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अंदर जाकर आवाज़ दी थी, जब उनसे मजाक उड़ाने की कोशिश गई थी कि आप जीरो पर बोलिए, तो उन्होंने जीरो ब्रह्मांड के अंदर सारी दुनिया को समेट लिया था। और वो भारत का डंका आज 100 साल के बाद भी सारी दुनिया में बज रहा है। तब उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे भारत का युवा भारत सारी दुनिया पे राज करेगा, विश्व गुरु बनेगा। और उनके उसी सपने को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी सारी दुनिया में घूम रहे हैं। अभी इसी साल के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में भी होने वाली है। इनके प्रयासों से मुंबई के अंदर आप सब उसके अंदर अवश्य सम्मिलित होंगे, ऐसा स्वामी जी भी निमंत्रण देने वाले हैं। मैं भी उनका डिसिपल हूँ। मैं पूरे मन से जब भी उनको मिलता है उनके चरण के हाथ लगाता हूँ, केवल झुकता नहीं, जब तक उनके पाँव के हाथ नहीं लगता तब तक रुका रहता हूँ। इतना उनके प्रति मन में श्रद्धा है। और उसका कारण ये है कि अब उनके परिचय में इन्होंने बताया कि IIT कहाँ से, खड़गपुर की IIT, जो कि वन ऑफ द बेस्ट IIT गिनी जाती है टेक्निकल कोर्स में, उसमें आपने इंजीनियरिंग पास की। इसके अलावा जहाँ से वो बचपन में पढ़े थे, जिस आश्रम में, जिस स्कूल में पढ़े थे, उस स्कूल के अंदर टॉप से कम कोई होता ही नहीं है। और आपको ये कई चीज़ें ऐसी है जो ये बताना नहीं चाहेंगे, पर मैं बताना आपको जरूर चाहूँगा कि इस चुनाव के पहले के चुनाव के अंदर जो एक नारा लगा था उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलडोजर बाबा, किसी को याद हो तो वो बुलडोजर बाबा न तो अमेरिका की किसी इंटरनेशनल कंपनी ने कॉइन किया था, न भारत की बहुत किसी एजेंसी ने, या जो ये इलेक्शन चलाने वाली बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने किसी ने कॉइन किया था, न किसी ने राजनेता ने कॉइन किया था। पर एक बहुत बड़े संत के यहाँ से आवाज़ निकली और सारी दुनिया में फैल गई। और वो संत और कुछ नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और उसके कारण पूरा चुनाव पलटा। चुनाव का महत्व नहीं है, चुनाव तो आते रहते जाते रहते हैं, पर भारत के अंदर धर्म की स्थापना, भारत में सनातन की स्थापना, उसके लिए उसके बाद में वो लड़ाई और मजबूती से आगे बढ़ रही है। विजय कमल जी ने जो किताब लिखी है सावर जी के बारे में, सावरकर, आपने कहा वो तात्या हैं। गिरगांव के काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैंने स्वामी जी को बताया, मैं भी गिरगांव से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गिरगांव ही है। और मिश्रा जी, मयंक गांधी जी, सारे सब एक से एक बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने कही था कि मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मैं केवल इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि ये कार्यक्रम और ये किताब एक शुरुआत होनी चाहिए। वेदई जी ने जो मेहनत करके ये किताब लिखी है, हमारी जिम्मेदारी है कि वो चिड़िया कभी थके नहीं, और उस चिड़िया को देखकर आग बुझाने वाले लोग भी नहीं थके। मैं वेदई जी, आपकी जो भी आज की प्राइस होगी उसके ऊपर 50 किताबें मैं मेरी तरफ से परचेस करना चाहता हूँ, ताकि ये किताब मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूँगा कि इस किताब को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतना पहुंचाए, क्योंकि सावरकर और सावरकर के विचार कभी पुराने नहीं हो सकते। कभी कोई नहीं कह सकता कि मैंने तो सावरकर को बहुत पढ़ा हुआ है। आप सावरकर के एक ही पेज को 10 बार पढ़ोगे तो आपको 10 अलग अलग संदेश मिलेंगे। इसीलिए वो इतने महान व्यक्ति थे कि सारी दुनिया उनके आसपास मंडराती है। उनको प्यार करने वाले भी मंडराते हैं और उनको नफरत करने वाले भी मंडराते हैं, पर सेंटर के अंदर सावरकर जी रहते हैं। और जितना उनके ऊपर आप चिल्लाओगे, जितना उनके विरोध में बात करोगे, उतना ही उनका कद बड़ा होता जाएगा, उतने ही ये कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे, उतनी ही किताबें और छपती जाएंगी। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा भारत का सावरकर में हो जाएगा। धन्यवाद। वैदेही तमन, डॉक्टर वैदेही तमन। और
मेरे सामने जो बैठे हैं देवियों और सज्जनों, विषय सावरकर का है। और सावरकर जैसे कहते हैं कि भाई अगर कोई बहुत ही कठिन काम हो तो ये कहा जाता है कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट मुझे लगता है कि सावरकर को समझना सचमुच रॉकेट साइंस जैसा ही है। उनको समझना इतना सरल नहीं है। सावरकर त्याग की पराकाष्ठा है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत बड़े कवि थे, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो जीवित थे उनके समकालीन, उनके जैसा मैं हर वर्ष जो कवि सम्मेलन होता है ठाणे में, उसमें थोड़ा बहुत मेरा योगदान होता है। मैंने भारतवर्ष के करीब करीब सब कवियों को सुना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी मुंबई में जब उनको पूछा गया, उनको विषय दिया गया कि वीर सावरकर के बारे में आपको कहना है, तो उन्होंने सारे शब्द जो हिंदी का शब्द है या मराठी का शब्द है, उसके ऊपर उन्होंने सावरकर की व्याख्या की। और क्या कहा उन्होंने? सावरकर का अर्थ है तेज, त्याग, तप, तत्व, तर्क, तारुण्य, तीर, तलवार, तिलमिलाहट, तितीक्षा, तीखापन, और मराठी में उन्होंने कहा तिखट। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक कवि एक भ्रांति, इमेजिनेशन, वो तो कर सकता है, लेकिन कवि एक क्रांति भी कर सकता है, या क्रांति के बारे में बातें कर सकती है। ये जरा अटपटा है, ये सामंजस्य नहीं रखता है इन दोनों बातों में। सेलुलर जेल की सलाखों में के पीछे रह के वीर सावरकर ने 10,000 से ज्यादा कविताओं को लिखा उन्होंने। और वो लिखते कैसे थे? सावरकर ने जो कविताएं लिखी, वहां पे कोई कलम या कोई पेपर नहीं होता था। सेलुलर जेल की सलाखों के ऊपर 10,000 कविताओं को लिखना, और लिखना किससे? पत्थर से। चौक तो होता नहीं था वहां पे। पत्थर से लिखना, कीलों से लिखना, और यहां तक कि जब पहले के समय में, कुछ साल पहले तक भी, अगर आप में से किसी को याद होगा, तो जो जूते होते थे उसके हील में, उसके एड़ी में कील से उसको ठोका जाता था, कील लग रहता था। तो सावरकर उस जूते के कील को, उसको हील को निकाल करके उसमें से जो कील होता था, उस कील से दीवारों पे लिखते थे, वो उसको याद करते थे, क्योंकि वहां पे कोई सुविधा तो थी नहीं। आप ये समझिए कि कितना बड़ा त्याग वीर सावरकर ने दिया, और कैसा उनका अनोखा व्यक्तित्व था कि जो 10,000 कविताओं का सृजन करे, उसको मिटाए, उसको कंठस्थ करे, उसको याद करे, ताकि वो उसके बाद में उसको कागजों पे लिखा जा सके उपयुक्त समय पे। वीर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ, और पहली बार उनको लंदन में उनको अरेस्ट कर लिया गया 13 मार्च 2010 को। नासिक में एक लड़का था 18 वर्ष का, अनंत लक्ष्मण कांटेरे, और उसने एक कलेक्टर की हत्या कर दी, AMT जैक्सन। और ऐसा कहा गया कि ये जो हथियार वहां पे आए थे, देश में तो कुछ बनता नहीं था,
तो जिस सरकार के लिए वो काम कर रहे थे, जिसके अगेंस्ट में काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध काम कर रहे थे, उस हथियार को वहां से इंग्लैंड से स्मगल करके यहां पर लाया गया और उस एक हथियार से वो जैक्सन की हत्या की। बड़ा सिंपल है। मुझे तो लगता है कि इसमें कौन सा बड़ा इस विषय में तो कम से कम रॉकेट साइंस नहीं है। अंग्रेज हमारे देश में करीब 250 वर्ष रहे और वो 250 वर्ष में कम से कम जब तक सावरकर थे 150 साल से वर्ष से ज्यादा हो गए थे उनको वहां पर हिंदुस्तान में। और ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब अगर वो भारत में हैं तो किसी और कनाडा में है या दूसरे और राज्यों में है या यूरोप में है, कहीं ना कहीं उनका साम्राज्य होता था। तो आज यहाँ पे दिन है तो वहां पे कहीं रात है, वहां पे रात है तो यहाँ पे दिन है, तो उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अब वहां से स्मगल करके जो कान्हेरे ने, उस 18 वर्ष के बच्चे ने उसको जैक्सन को मारा वहां पे, तो ये कहा गया कि आप भी षड्यंत्र में शामिल हैं और उनको 27 वर्ष की आयु थी उनकी। और 27 वर्ष की आयु में के बाद में 1911 और 1921 इन वर्षों में उन्होंने काला पानी की सजा काटी, 10 वर्ष। और ये समझ लीजिए कि अगर 27 वर्ष को 10 वर्ष में उसको जोड़ दिया जाए तो 37 वर्ष। और उसके बाद में 1947 के कुछ वर्ष पहले तक तो इन्होंने अपनी जवानी को या अपने पूरे जीवन काल को अगर देखा जाए तो लगा दिया देश कैसे हमारा पराधीन स्वतंत्र हो, अंग्रेजों के चंगुल से कैसे निकले। और ये बात सावरकर को समझ में आ गई थी कि अंग्रेज वैसे भागेंगे नहीं इस देश में से। आप चरखा चला लीजिए, आप चरखा चलाने से अगर अंग्रेज भागने लगते तो हम आज भी चरखा लगा दें सब बॉर्डर्स पे अपने। इतने सारे हमारे आर्म्स और एमिनेशंस जो हम इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, तो वो सब की आवश्यकता क्या है। तो चरखा चलाने से सावरकर निश्चित जानते थे कि कोई आजादी मिलने वाली नहीं है। आपको अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, उनको धमकाना पड़ेगा, उनको बम मारना पड़ेगा, गोली मारनी पड़ेगी, तभी वो यहां से डर के भागेंगे। और यही हुआ आखिर में कि जब सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना की, उसका इंस्पिरेशन कहां से मिला? वो सावरकर ने कहा उनको। सुभाष चंद्र बोस मिलने आए थे सावरकर और उन्होंने रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, और उन्होंने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि जो कलकत्ता में अंग्रेज की एक मूर्ति लगी हुई है वहां उसको मैं ध्वस्त कर दूं, और उस ध्वस्त करने के बाद में और मैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगा। तो सावरकर जी ने मना किया, उनको कहा कि आप ऐसा करने से आप अरेस्ट हो जाएंगे, आप गिरफ्तार हो जाएंगे और आपका जो ये कार्यक्रम है वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सेना बनाइए। और उन्होंने इसी बात को लेकर ये कहा था कि जितने ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोग, हिंदुस्तानी लोग, हिंदू सेना में भर्ती हो सके तो वो बंदूक की नाल जो है दूसरी तरफ भी घूम सकती है, वहां पे नहीं, यहां पे। तो वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे, वो भविष्य को देख सकते थे कि भविष्य के संकट को देख सकते थे और भविष्य को में क्या हो सकता है। उन्होंने 1920 और 21 में जब खिलाफत आंदोलन चला हिंदुस्तान में, तब गांधी को उन्होंने कहा कि आपकी ये तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में विभाजन पैदा कर सकती है। अब 1920 में, और हमारा देश तो विभाजित हुआ आखिर में 1947 में, लेकिन कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 1920 में कि जो सावरकर कह रहे हैं वो कभी सत्य हो जाए। सावरकर जैसा विद्वान, मुझे लगता है कि हम उनको समझने में, उनको जो कुछ मिलना चाहिए था इस राष्ट्र ने, ना उनके रहते हुए दिया, ना अब देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम को, और इस तरफ वैदेही ने अपने पुस्तक में सावरकर के कई ऐसे विषयों को रखा हुआ है, और
मैं चाहता हूं कि मैं भी पुस्तक खरीदूंगा और मैं कई लोगों को इस पुस्तक को वितरित भी करूंगा, और आप भी इस बड़ी संख्या में इस पुस्तक को खरीदिए और अपने मित्रों को दीजिए, अपने और यंगस्टर्स जो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की वंदे आप सबके लोकप्रिय मंत्री मंगल प्रभात जी आए। सबसे बड़ी चीज है कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं अपने जनता के बीच में। जनरली सारे मंत्री आजकल उपलब्ध नहीं होते हैं। आए, अपना काम करके चले गए, यानी अपनी उपस्थिति दे दी। डॉक्टर वैदेही तमन जैसे उनका है कि जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, और अपने झा जी, मयंक भाई और बहुत सारे जो लोग, जिनको हम सबको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मिले होंगे। आज इन्होंने सावरकर जी पर पुस्तक लिखा जिसका हम लोगों ने विमोचन किया। अंग्रेजी में जर्नलिस्ट हैं जिनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, आजकल का मॉडर्न कहावत है, वर्ड्स आर द न्यू वेपन एंड सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी। आज के जमाने में वर्ड्स है, शब्द है ना, यही हथियार है। वर्ड्स आर द न्यू वेपन एंड सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी, यही आर्टिलरी है। वन हू कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल है। तो आजकल की लड़ाई शब्दों की भी बहुत बड़ी लड़ाई है। तो सावरकर जी के से संबंधित जिन्होंने साहित्य रचना की, जो लोग पढ़ेंगे, हम लोग तो बचपन से सावरकर को पढ़ करके ही बड़े हुए। हम लोग की पूरी विचारधारा की प्रेरणा का स्रोत ही सावरकर जी थे। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूं जो आज भी रिलेवेंट है। सावरकर जी का हम लोग ने एक घोषणा दिया था, हम लोगों ने पढ़ा था। देखो, इस भगवे ध्वज के तले हिंदू जिस दिन संगठन होगा और संगठित होगा, उस दिन मुझे लोग प्रॉफिट कहेंगे और नहीं तो मुझे पागल कहेंगे। वो प्रॉफिट वाला धीरे धीरे, वो रियलिटी अब धीरे धीरे सामने आ रहा। हिंदू समाज भगवे ध्वज के नीचे खड़ा हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने उस समय कहा था राजनीति का हिंदूकरण करो, जब कोई हिंदुओं की बात नहीं करता था। अब राजनीति का हिंदूकरण करने के लिए अब तो लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा राम जन्मभूमि आंदोलन चला, हम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन के समय के शुरुआती पार्टिसिपेंट है, उसी के प्रोडक्ट है, उसी में सब काम किया। राम जन्मभूमि आंदोलन उसी राजनीति के हिंदूकरण का एफर्ट था, जिसको सावरकर जी ने कम से कम राम जन्मभूमि से 50-60 साल पहले कहा था कि राजनीति का हिंदूकरण करो। बिना राजनीति का हिंदूकरण किए बाकी सारी चीजें होने वाली नहीं थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, पहले सब लोग हिंदू थे, लेकिन हिंदू बाय बर्थ, लेकिन गर्व से हिंदू कहने के लिए सबसे पहले अटल जी जो है ना 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री, फिर 13 महीने एक्सटेंडेड करके 19 महीने, फिर 4.5 साल, लगभग 6 साल प्रधानमंत्री रहे। अब 2014 में जब नरेंद्र भाई आए तो अब देखो 11-12वें साल में तो प्रवेश हो चुका है। तो अब राजनीति का हिंदूकरण की ओर हम दिशा में अच्छी तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं। अधिकांश राज्यों में भी हिंदूवादी लोग सत्ता में हैं।
तो राजनीति का हिंदूकरण सबसे पहला उनका घोषणा था। दूसरा था घोषणा था हिंदुओं का सैनिकीकरण करो, हिंदुओं का सैनिकीकरण करो। ये जिस बैकग्राउंड में कहा था, मोपला का दंगा हुआ था, मोपला का दंगा हुआ था। आज तो बांग्लादेश में 10-20 हिंदू मारे जाते तो हम परेशान हो जा रहे हैं। मोपला में 10,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, जिस पर सावरकर जी ने ऐतिहासिक उपन्यास मोपला लिखा। गांधी जी ने इस चीज को, हिंदू समाज का जो वीकनेस था ना, उन्होंने रियलाइज किया। वो गांधी लिखते हैं, एवरेज हिंदू इज अ कावर्ड, एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। गांधी जी, इस चीज को गांधी जी ने बोला है कि सामान्य तरीके से सारे मुसलमान बुली लोग होते हैं, और एवरेज हिंदू क्या है? कावर्ड है। क्यों? कि हम मार खाने के बाद, इतने हमारी मार पड़ी, डर जो हमारे स्पाइन के अंदर घुस गया। अब उस डर से निकलने के लिए केवल किताब पढ़ने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है? एक बलवान 10 विद्वानों को भी अपने बस में कर लेता है। शास्त्र का वचन, एक बलवान 10 विद्वानों को अपने शास्त्र वचन में, अपने बस में कर लेता है। सावरकर जी ने इस हिंदू समाज की कमी, जो हमारा दुर्बलता है, कायरता है, या मार खाते खाते जो पिछले वर्षों में हम जो डर अंदर घुस गया, ये कैसे निकलेगा? कि जब तक हिंदुओं का सैनिकीकरण नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा। झा जी ने उसकी बात की। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय आपको पता नहीं होगा, स्टैटिस्टिक में बता रहा हूं, भारतीय सेना जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें मुसलमान ज्यादा थे। मुसलमान यानी हम उस समय भारत के हिंदू 80% थे। उस समय में अखंड भारत था, उस अखंड भारत में मुसलमान सेना में ज्यादा थे। इस चीज को सावरकर जी ने रियलाइज किया कि आज कल न कभी अंग्रेज जाएगा, परमानेंट तो नहीं रह सकता। जब जाएगा तो इस देश का सिविल वार होगा। सिविल वार होगा तो जिसके पास ताकत होगी ना, शक्ति होगी, वही अपने भूमि क्षेत्र की रक्षा होगा। यानी बंटवारा अंग्रेज करके जाएंगे तो भी उसकी आप रक्षा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस समय उन्होंने कहा कि हिंदुओं का सैनिकीकरण करो। और जब नेताजी आए, नेताजी को कहा कि विदेश जाओ, उस समय अपने रास बिहारी बोस से संपर्क था। उस समय लोगों ने उनको कहा, आज जो उनको गाली देने वाले कहते हैं ना, उन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया, लोगों का सेना में भर्ती करो, सेना में भर्ती करो। उनके आह्वान से उस समय बड़ी संख्या में हिंदू सेना में गए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गए। और वो जानते थे कि भाई जब इंडियन आर्मी में हमारे लोग हिंदू जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग भी देंगे, तो ट्रेंड लोग हमारे वापस आएंगे। वो जब जरूरत पड़ेगी, सामर्थ्य होगा तो अपनी सीमाओं पे भी रक्षा करेंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अभी स्वतंत्रता नहीं हुई है, स्वतंत्रता से पहले ही उसकी आवश्यकता पड़ गई। जब आईएनए में वही लोग जो है ना, जो इनके आह्वान पर सब गए थे, आईएनए वाले अधिकांशतः सोल्जर वही लोग थे, जो नेताजी के सोल्जर, आजाद हिंद फौज के सैनिक बन गए। जब यहां पर देश स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी द्वितीय विश्व खत्म हो गया, हमारे सैनिक आए, आप सब जानते हैं उनकी लड़ाई चली, लाल किले में कोर्ट बना, तो उससे कितना बड़ा यहां स्वतंत्रता का वातावरण भारत के अंदर बना।
उस समय एक नारा लगता था, लाल किले सी आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। उसके बाद यहाँ इसके आपके मुंबई में नौसेना का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, नौसेना का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। फाइनली धर्मेंद्र गौड़, जो उस समय अंग्रेजों का यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी था, उसके फोर्स 136 के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने जब चर्चिल के बाद वहां के प्रधानमंत्री बने, वो भारत घूमने आए और वो लखनऊ गए थे। उनका अपने संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, उनसे चर्चा होता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर हर चीज रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्होंने चर्चा की कि भाई आप तो जीत गए थे, हम कांग्रेस तो सब लोग जेल में चले गए थे, फिर आप लोग देश छोड़ करके कैसे चले गए, हमें स्वतंत्रता कैसे मिल गई? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो जो जिसको वहां की पार्टी है लेबर पार्टी, उसका आदमी हूं, हमारी पार्टी जीत गई चुनाव में, यानी ब्रिटिश जनता भी चर्चिल से, युद्ध जीतने वाले चर्चिल से असंतुष्ट थी। अब हमारी स्थिति थी कि हमारे यहां अंदर ही हालत खराब था, माने ब्रिटेन के अंदर हम हमें अपने आप को संभालना महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में भारत जैसे बड़े देश को हम कैसे संभाल सकते थे, और जिनके भरोसे हम संभालते थे, जिनके भरोसे संभालते थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी नेवी जो भी थी उस समय हमारे, वो अब हमारे लोयल नहीं सके, वो हमारे लोयल नहीं थे। उनके बिना हम अपने सेना, हमारी भी सेना द्वितीय बहुत भरी, इतनी हमें सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए अंत में हमें भारत को छोड़ना पड़ा। तो ये सावरकर जी की दृष्टि थी, ये तो सभी जगह हुआ है कि लड़ता कोई है, कोई भारत की बात नहीं है, फायदा किसी और को मिलता है, ये यही नहीं है सावरकर जी का। जब हम लोग ने मैजनी के बारे में, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी उस समय लिखी थी, मैजनी की आत्मकथा लिखी थी, जो हम लोगों ने पढ़ा। इटली के अंदर भी जब वहां लड़ाई हुई स्वतंत्रता की, उन्होंने लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, मैजनी, गैरिबाल्डी, लड़ने वाले वो लोग थे, उसके नेता मैजनी थे, सोल्जर में कमांडर इन चीफ गैरिबाल्डी थे, लेकिन सत्ता उन लोगों को नहीं मिली। फायदा किसको मिला? काउंट काबुल को मिला, काउंट काबुल को मिला। ऐसे यहां पर भी लड़ने वाले बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उनको नहीं मिली सत्ता, नेहरू को मिल गई, लेकिन देश तो स्वतंत्र हो गया। सावरकर जी की यही सबसे बड़ी इच्छा थी, देश स्वतंत्र होना। तो ये बिना सैनिकीकरण के संभव नहीं है। अभी रियल सैनिकीकरण का काम भी अभी शुरू हुआ, मैं भारत में बता रहा हूं। 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, जो उस समय जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, जो भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमने अपने जो हमारे जनरल मानिक शाह, नथु सिंह थे, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, इनको अपना चीफ नहीं बनाया, ब्रिटिश ऑफिसर को ही चीफ बनाया, और वो पढ़ने लेके गए नेहरू जी के पास कि इतना बड़ा देश है, तो आपको इसकी सुरक्षा के लिए सारी कैसे आर्मी, डिफेंस, बॉर्डर सबकी कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो नेहरू जी का शब्द है, इट इज रबिश, बकवास, वी डोंट नीड आर्मी, पुलिस इज एनफ, पुलिस से काम चल जाएगा। ये जिसको कहते हैं ड्रीम वर्ल्ड में जो रहने वाले लोग हैं ना, मैं मानता हूं, देखो मैं सैडिस्ट की तरह से बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इसको कहते हैं ना परमात्मा हमारे
पाकिस्तान अगर अटैक नहीं करता तो हमारी आर्मी को नेहरू डिसमेंटल कर देते। पूरा योजना थी। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अब ध्यान दो, अगर हमारी जो भी हमारी आर्मी नहीं होते, ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो ट्रेंड हमारे सोल्जर नहीं होते, 80% उनके होते, 20% हमारे होते, तो कश्मीर को हम बचा नहीं पाते। वो हमारे सोल्जर थे, वो सारे सोल्जर जो है ना, वो स्वतंत्र भारत के ट्रेंड किए हुए नहीं थे। जो श्रीनगर एयरपोर्ट को लड़ते हुए जो बचाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके छोटे भाई बाद में वीएन शर्मा, विश्वनाथ शर्मा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जनरल बने। सिपाही आदमी है ना, जिनको परमवीर चक्र पहला मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला उसी कश्मीर में। नायक जदुनाथ सिंह आपके महाराष्ट्र के, राम राघोबा राणे, करम सिंह और पीरू सिंह है ना, ये 5 लोग उस लड़ाई में 5 लोग लड़े तो बहुत बड़ी संख्या है, मैं 5 लोगों को परमवीर चक्र मिला। इसके कारण से देश का सैनिकीकरण गांधी नेहरू ने नहीं होने दिया, लेकिन कम से कम अपनी आर्मी को डिसमेंटल नहीं किया। 62 में हमारा ह्यूमिलेटिंग डिफीट है। इसमें नेहरू ने जो भी किया उसका ह्यूमिलेटिंग डिफीट है। कम से कम 2-3 साल में हम जगह तो 65 में संभव हम अपने आप को खड़ा कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी हमारी आर्मी विजयी हुई 1971 में, कि पाकिस्तान को हमने 2 हिस्सों में काट दिया। ये आर्मी की प्रिपरेशन थी। ये सॉरी टू से केवल राजनेताओं का के बस की बात नहीं थी। और मैं आपको बता रहा हूं, उस समय का सारा रिकॉर्ड पढ़ लीजिए। जनरल मानिक शाह के प्लानिंग में नहीं था, भारत सरकार के प्लानिंग में था कि बांग्लादेश का ढाका कब्जा करना है। ये 2 ऑफिसरों की प्लानिंग थी। उस समय मेजर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईस्टर्न कमांडर जैक फ्रेडरिक राल्फ जैकब, ये यहूदी ऑफिसर जिसको बगदादी ज्यूज कलकत्ता कहते, उनकी योजना थी। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की योजना थी। उन्होंने मेघना क्रॉस कर दी, मेघना नहीं, वहां का जो हमारे गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ना, उसको वहां लोग मेघना कहते हैं। ढाका के पहले उन्होंने उनको बोला कि इनकी योजना थी कि देखो, जब तक ढाका पर कब्जा नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। इंडियन आर्मी के मास्टर प्लान में कहीं नहीं था। जब तक ने योजना बनाई कि हर यूनिट से, ब्रिगेड से 1-1 यूनिट निकाल कर 1 यूनिट ढाका के लिए उसने प्लानिंग की। अब ये सेना नहीं होती तो आज पाकिस्तान हमारे लिए कितना सिरदर्द होता, आप कल्पना कर सकते थे। 71 जैसे जैसे कारगिल की लड़ाई, अब मैं बोला हिंदुओं का राजनीतिकरण हुआ, नरेंद्र मोदी की सत्ता, ये जो लोगों ने नहीं समझ रहे हैं, जो उन्होंने अभी शुरू किया है ना 4 साल वाला योजना, अग्निवीर योजना शुरू किया है ना, ये हिंदुओं का सैनिकीकरण की योजना है। यानी सावरकर जी का कम से कम 75-100 साल पहले कहा हुआ शब्द को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि ये अपने लोगों को ट्रेन करके समाज में नहीं भेजोगे तो पता नहीं कब सिविल वार होगा। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। ऐसा है, ये कैंडल जलाने से आपका काम चलने वाला नहीं है। मुंबई वाले कैंडल बहुत जलाते हैं। सिर्फ कैंडल। हाँ, बम कितनी बार बम फूटा है और वहां क्या गेट ऑफ इंडिया का कैंडल जलाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब सिस्टमेटिक तरीके से सावरकर जी की बात को 90 साल के बाद जो है ना, 100 साल के बाद ये सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो मैंने कहा हिंदुओं का राजनीतिकरण करो, राजनीति का न हिंदुओं का सैनिकीकरण करो। तीसरा उनका स्लोगन था देश का औद्योगिकीकरण, देश का औद्योगिकीकरण करो। देश स्वतंत्र हो गया, देश स्वतंत्र हो गया। आप देखो हमारे देश में लड़ाई नहीं हुई, हमारे सैनिक दुनिया में लड़े,
गवर्नमेंट को सप्लाई के लिए जो भी चाहिए था हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था। उसके कारण उस जमाने में हमारे $1.5 बिलियन का हमारे पास सरप्लस था। $1.5 बिलियन का सरप्लस था। नेहरू जी ने, क्योंकि वो नेहरू जी ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाले आदमी थे, जिसको दुनिया रियलिटी की दुनिया में नहीं रहते। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा है। नेहरू जी के खास अपने जो आदमी थे एमो मथाई, उनकी 2 पुस्तक है, माई रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एंड माई डेज विथ नेहरू। उसी में लिखा कि नेहरू यूज्ड टू लिव इन द ड्रीम वर्ल्ड, ही वाज नॉट रियलिस्टिक पर्सन, जो उनके साथ क्लोजली रहे। कहीं दुनिया में ऐसा देखा है? सरकार अपने जनता से टैक्स लेती है और अपने जनता के विरोधी कंपटीशन करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना करके क्या हुआ? उन्होंने आपके पैसे से और आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। वो गुजरात में, सारी दुनिया में कहावत है, गांधी जी ने इसको बार बार रिपीट कहा कि राजा व्यापारी तो प्रजा भिखारी। राजा का काम व्यापार करना नहीं है। नेहरू जी ने व्यापार करना शुरू कर दिया, पीयूसी बनाने लगे और सारे पीयूसी लॉस में चल रहे हैं। बहुत ही कम पीयूसी फायदे में, उसका बोझ भी आप दोनों तरफ से जनता को मार पड़ रही है। आपका टैक्स लेके फैक्ट्री खोल रहे हो, लॉस हो रही, तो बात का लॉस भी आपको ही दोनों तरफ से, जैसे ढोलक पे दोनों तरफ से पीट रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि हम जो अमीर थे, सरप्लस था, धीरे धीरे उड़ते गया और हम धीरे धीरे गरीब होते गए। मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारा आज यूरोप जो देख रहे हैं, यूरोप इस सेकेंड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक बूम हुई उसका परिणाम है। जापान खंडर हो गया था, लेकिन जापान खड़ा हो गया, वही औद्योगिकीकरण के कारण से। जर्मनी खड़ा हो गया, लेकिन हमारे पास तो इंडस्ट्री, हमारा डिस्ट्रॉय नहीं था, हमारा सब कुछ था, लेकिन हमने अपने इंडस्ट्री को बढ़ने नहीं दिया। इसको रस्सी, जिसको संकड़ बोलते हैं हमारे यूपी में, लोहे का जंजीर, आप लोग यहाँ जंजीर बोलते हैं, जंजीर में जो बांध दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। क्या हुआ? हम धीरे धीरे गरीब हो गए। एक समय तो ऐसा आएगा कि हमारा डब्बा लेकर के पेरिस क्लब में हर जगह मानते थे। वो दुर्गति नरसिम्हा राव ने समझ ली। 1991 में हम ब्रेक, हालत खराब थी, उन्होंने इकोनॉमी ओपन किया। जिस इकोनॉमी को गाली देते थे, यही नेहरू की इकोनॉमी जो मैं बताया, 2% ग्रोथ बोलते थे, यानी चिढ़ाने के राज किसने ने बोला 2% ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट, माने हमें चिढ़ाने के लिए हिंदू ग्रोथ रेट। देश वही है, समाज में सब कुछ वही है, केवल आपने रिफॉर्म अभी बड़ा नहीं हुआ था, उसको तो अनसैक्टिंग ऑफ द इकोनॉमी। हम सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गए, मैन्युफैक्चरिंग सारा उद्योग बनने लगा। मनमोहन सिंह जी आए, फिर पिछड़ गए, फिर हम गए। अभी धीरे धीरे दोबारा जिस चीज में हम नहीं पीछे थे, है ना, नरेंद्र भाई ने, जैसे हम क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, हमारी उतनी हमने जो पिछले 60-70 साल में नहीं हो पाए, कितनी जल्दी थोड़ा उन्होंने PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लाए। आज देखिए सारा चीज यहाँ बनने लगा। जब बनने लगा तो धीरे धीरे सब चीज आएगा। शुरुआत में चाइनीज प्रोडक्ट गाली देते थे, थर्ड क्लास है, अब देखो वहां के प्रोडक्ट अच्छे निकलने लगे, कैपिटल आया। बचपन में हम लोग तो जापानीज प्रोडक्ट को भी खराब मानते थे, छोटे थे, धीरे धीरे जापानीज प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हो गए। अब देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1973 के आसपास जो है ना, अमेरिका ने इंदिरा गांधी जी को कहा कि हम आपके यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने बोला नहीं, वो ताइवान चले गए। आज ताइवानीज कंपनी ही जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। हमने उन सब चीजों का फायदा नहीं हुआ। अब देखिए थोड़ा सरकार जागी है तो हमारे 5-6 अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेंटर बनने लगे। तो अब रियल सेंस में सावरकर जी ने उस समय सोचा देश का औद्योगिकीकरण नहीं होगा तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते। केवल सर्विस इंडस्ट्री से काम चलने वाला नहीं है।
क्योंकि इकॉनमी जब बढ़ेगा तभी उससे होगा। आज स्थिति यह है कि उस समय देखेंगे, हम लोग यंग थे उस समय, इमरजेंसी के टाइम में स्कूल में पढ़ते थे, तो नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ क्या, गरीब को ही हटा देंगे। अब पहली बार जो है ना दुनिया में खड़े होकर के घूमते हैं तो जनता बोलती है। अभी पिछले साल हमारा वर्ल्ड हिंदी इकोनॉमिक फोरम एडिलेड में था। आपको तो मेट्रो होता ना, वहाँ शहर के अंदर जो डाउनटाउन सिटी है वहां पर सरकारी ये सब ये नहीं है, क्या नाम, जो बस जो चलती है ना वहाँ ट्राम चलती है, क्योंकि इन्वायरमेंट कॉन्शियस ट्राम चलती है। तो शहर के अंदर जो ट्राम है फ्री है, विद इन एक लिमिट है ना, डाउनटाउन जिसको कहते हैं शहर का, उसमें ट्राम टाउन लिमिट फ्री है, कोई भी बैठ के जा सकते, क्योंकि उनको ये कार वगैरह नहीं चाहिए। हम ट्राम में बैठे तो एक महिला जानती नहीं उसको, वो यू आर फ्रॉम इंडिया, यस योर कंट्री इज गोइंग टू बी द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। ये नहीं, आप बता रहे हो, ये हमने उसको कोई मार्केटिंग नहीं, मेरा तो ऐसे भी बड़ा ऑर्डिनरी ड्रेस है, यानी उसको पहचान में आके के भारत से है। वो कहती है कि योर कंट्री पीपल आर गुड पीपल है, आगे बढ़ रही है। तो देश का औद्योगिकीकरण के बिना, अर्थव्यवस्था मजबूत किए बिना ये सब काम नहीं होगा। और साथ साथ देश में समृद्धि आनी चाहिए, उसके लिए किसानों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसान की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, उसका किसान ही ठीक नहीं होगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो कुछ भी चलने वाला नहीं है। हमने हर क्षेत्र को इग्नोर किया। तो आज समय आ गया है, सावरकर जी का की जो बात है ना, मैं वही दीपाल याद करा रहा हूं, वैदेही जी, भगवे ध्वज के नीचे जब लोग खड़ा होंगे ना तो मुझे प्रॉफिट कहेंगे। आज वो आने वाले 10, 20, 25 साल में और इसका रियलाइजेशन सबको होगा। मैं दूसरा चीज बता रहा हूं, हिस्टोरिकली में बता रहा हूं। ठीक है, सत्ता आ गई, नेहरू जी की आ गई, चल गई, लेकिन कोई सत्ता परमानेंट रहती नहीं। एक पैरेलल में बता रहा हूं, इजराइल में, इजराइल यहूदियों का देश है ना, इजराइल यहूदियों का देश नहीं था, वहां तो पैलेस्टाइन था, मुसलमानों का प्रभाव था। डेविड गुन गुरियन, जिसको बेन जॉन गुरियन जिन्होंने नाम बताया, डेविड गुन गुरियन है, इजराइल स्वतंत्र हुआ, उनके स्वतंत्र होने से पहले उनकी एक संगठन था हगाना। थोड़ा और मैं बैकग्राउंड जा रहा हूं। 1897 में एक थियोडर हर्जल नाम के जर्नलिस्ट, आपके बिरादरी का आदमी, यहूदियों का पहला कॉन्फ्रेंस वहां ऑर्गेनाइज किया, और उस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नेक्स्ट, पहला कॉन्फ्रेंस जिसको नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 50 ईयर ज्यूज विल होमलैंड, अगले 5 साल तो 50 साल में यहूदियों को होमलैंड जाना है, ध्यान दो। लेकिन कैसे जाए, ना आर्मी है, ना देश है, ना सेना, कुछ भी नहीं है। उसने कहा रोड टू जेरूसलेम विल गो थ्रू द बिजनेस एंड इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी के माध्यम से जाएगा। और बिजनेस इकोनॉमी का सारे बिजनेस, बैंकिंग फाइनेंस, आज जो जानते दुनिया में लोग ना, बैंकिंग फाइनेंस उनको पता होना चाहिए कि आज भी दुनिया में जितना यहूदियों का पास फॉरेन रिजर्व है ना, G7 देश है, G7 उनसे डबल द फॉरेन रिजर्व है उनके पास। दुनिया की बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाहता हूं, उसी समय हगाना एक मूवमेंट शुरू हुआ था, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। हगाना से के लोगों को लगा सब ढीले ढाले टाइप के ऐसे काम चले, उससे एक अलग से मूवमेंट शुरू किया, बहुत लड़ाकू क्रांतिकारी लोगों का ग्रुप। वो ग्रुप था इरगुन, उसको कहते हैं नेशनलिस्ट, नेशनल मिलिट्री आर्मी, जिसको उसकी भाषा में नेशनल मिलिट्री आर्मी कहते हैं, नेशनल आर्मी, मिलिट्री आर्मी जो की भाषा में, जूस लैंग्वेज में। उसको फाउंडर जेबिटस की बाद में मेनिन बेगिन हुए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो सत्ता डेविड गुन गुरियन के सोशलिस्ट जो लोगों के हाथ में आई। बाद में उसी में से स्टैंडिंग ग्रुप निकला, लेकिन धीरे धीरे वो सारा ग्रुप धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जो इरगुन के ग्रुप थे, स्टैंडिंग ग्रुप थे, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आने लगे। पिछले 30, 35, 40 सालों से आजकल वही लोग इजराइल की सत्ता में है, वो पुराने लोग खत्म हो गए। ये सारे आपको इज़्ज़ाक
लेकिन अब सब उसी परंपरा के लोग हैं, यानी वहां पर भी वो खड़ा हो रहा है। तो मैं यही पैरल ड्रा कर रहा हूं कि सावरकर जी की जो विचारधारा थी देश को मजबूत करने के लिए, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान, थोड़ा टाइम लगा। टाइम इसलिए लगा कि सावरकर जी तो बहुत एडवांस थे, बहुत दूर सोचा करते थे। सावरकर जी की दृष्टि क्या 100 साल आगे थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब सावरकर जी जेल में गए अंडमान में, काला पानी में, तो लोगों को तो सबको वहां चिंता थी, यहाँ जो पुराने उनसे पहले के क्रांतिकारी थे, बारिंदर घोष, हेमचंद कानूनगो, तो सब बड़े निराश थे कि यहाँ से तो हमारा हड्डी ही जाएगा, हड्डी मर के ही जाएंगे, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलता था। तो उनका कहना था कि इतने दिन अंग्रेज थोड़े ना रहेंगे यहाँ, इतने दिन अंग्रेज नहीं रहेंगे। और वहां देखो जेल के अंदर बंद है, कोई बाहर कोई भूख फूक नहीं है, लेकिन वहां क्या कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा नेवल बेस बनेगा और बन सकता है। आज भारत सरकार 100 साल के बाद, 110 साल के बाद इंटीग्रेटेड कमांड वहां बना रही है। तो समस्या क्या, सावरकर जी 100 साल पहले सोचते थे, हम लोग को सावरकर जी ग्रास करने थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अब वो 100 साल हो रहा है। धीरे धीरे आने वाली जनरेशन को सावरकर जी की जो मैं बता रहा हूं, हर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में जाइए, सावरकर जी लेखक हैं, सावरकर जी कवि हैं, सावरकर जी इतिहासकार हैं, सावरकर जी क्रांतिकारी हैं, सावरकर जी वक्ता हैं, दूरदृष्टा है। कौन से क्षेत्र में चले जाइए, ऐसी प्रतिभा का आदमी मिलना मुश्किल, कठिन है। हम लोग को बड़ा गर्व है कि हम ऐसे महान पूर्वजों के वंशज हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, अंत में कितना टाइम हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं कि मैं बार बार सब जगह बताता हूं, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं कि जहां हमारे पूर्वज लोगों ने 115 जनरेशन लड़ाई की है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप जानते हैं साउथ अमेरिका एक देश है, कंट्री महादेश है, जिसमें पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला सब है, सारे देश हैं। वो उस देश को, वहां पर पुरानी बड़ी सभ्यता थी, इनका, मय सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, उसको एक स्पेनिश, बाद में पुर्तगाली लोगों ने मिलकर के 100 साल से भी कम समय में इतने बड़े महादेश को उन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा करके कन्वर्ट भी कर दिया। आज वहां 500 मिलियन, 50 करोड़ से भी ज्यादा ईसाइयों का देश हो गया। वहां आज का पोप भी वहीं का, आज का पोप भी वहीं का है। हक्सले एक बार गए थे तो उन्होंने देखा कि कॉलोनाइजेशन यहाँ डीप है, कि लोकल लोग जो है, लोकल लोग स्पेनियर्ड, स्पेनिश लोगों को वहां स्पेनियर्ड बोलते, स्पेन से आए, उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कॉलोनाइजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी स्पेनिश, पुर्तगीज और स्पेनिश लोगों ने 100 साल के अंदर एक महादेश खत्म कर दिया। यूरोप जहां रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वहां पैलेस्टाइन से क्राइस्ट गया, जिस क्रिश्चियनिटी गया, 100, 200, 300 साल में पूरा बड़ा यूरोपियन सिविलाइजेशन, माइटी सिविलाइजेशन सब म्यूजियम में पहुंच गया। सारे म्यूजियम में उनके देवी देवता, कोई पूछने वाले सब म्यूजियम में है। ये जिस वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, असीरियन सिविलाइजेशन थे। इस्लाम उदय हुआ तो ये सारे देवी देवता सब म्यूजियम पहुंच गए, कोई उनका मानने वाला नहीं है। उनकी तो दुर्गति हुए हो गई कि उनके म्यूजियम भी तोड़ करके लूट लिए, म्यूजियम में भी उनकी दुर्गति हो गई। और ये ध्यान दो, ये सब लोग कभी न कभी, अलेक्जेंडर से लेकर के, अलेक्जेंडर, ग्रीक, सिथियन, पार्थियन, कुषाण, शक, हुन, लगभग 900 साल हमारे पूर्वज लड़े और फिर जीत गए। फिर अभी जीत
इंसान नहीं हुआ था एज ए सिविलिजेशन। फिर आ गए अरब, तुर्क, मुगल, इन सब से भी लगभग 1200 साल हमारे पूर्वज लड़े। अगर उसे 326 BCE कॉमन एरा से जोड़ोगे तो आज लगभग हम 2300 साल लड़े। हिस्ट्री में 20 साल में एक जनरेशन बदलता है, तो हम लोग 115 जनरेशन हम लोग पूर्वज लड़े। इतने लड़ने के बाद भी हम अभी भी बच गए, और छोटी मोटी संख्या में नहीं बच गए। 1/6 ऑफ द ग्लोबल, दुनिया में 6 में से आदमी एक हिंदू है। ये उन्हीं प्रतापी पूर्वजों का बलिदान का प्रताप है। सावरकर जी जैसों की तपस्या है, जनरेशन टू जनरेशन। तब वहां से तो हम उस गड्ढे से बाहर निकल रहे हैं भाई। अब तो धीरे धीरे छाती चौड़ा होकर दुनिया में खड़े हो रहे हैं। हमारा भी दिन लौट रहा है, और फिर हम भगवा ध्वज के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। फिर वही सावरकर जी वैसी, उनकी भी वैसी प्रतिष्ठा होगी कि भविष्य दृष्टा, हिंदू दृष्टा के रूप में। और यही है कि सावरकर जी की बात कर को हम दुनिया में सबको इसलिए फैला है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। ऐसा नहीं कि सावरकर जी से किसी को चिढ़ है। सावरकर जी को जो भी पढ़ लेगा ना, उनका भक्त बन जाएगा। सावरकर जी का हिंदू पदपाल साहिब पढ़ो, 1857 का स्वातंत्र समर पढ़ो, ये सब पढ़ने की चीज है कि आपको प्रेरणा मिले। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का एज ऐसा हो गया कि किसी को पढ़ता नहीं है। और ये सारे हम लोग जब छोटे थे तो पुराने क्रांतिकारियों के छोटे छोटे बुक, अमरचित कथा, ये सब अवेलेबल थी। आजकल वो सब अवेलेबल नहीं, मार्केट से भी नहीं है। नहीं पढ़ते, रोड पर पटरी पर बिका करते थे, कम से कम जाते आते कर, आजकल कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सभी चीज हर तरीके से बुक के रूप में, जैसे भी हो, अपने पूर्वजों के सब क्रांतिकारी जो विचार सावरकर जी में श्रेष्ठ हैं, उनको जनता के आएगा तो धीरे धीरे गौरव आ रहा है। मैं मोहनदास पाई से एक दिन चर्चा कर रहा था, तो बड़ा स्वामी जी पणम पणम पणम, पणम मीन्स पैसा है ना, वो गोवन है, वहाँ पैसे को पणम बोलते हैं। बोला कि स्वामी जी हम लोग गरीब हो गए तो हमारा सेल्फ स्टीम चला गया, करेज चला गया, प्राइड चला गया। अब थोड़ा थोड़ा प्रॉस्पेरिटी आ रहा है तो करेज भी आ रहा है, प्राइड भी आ रहा है। लोग जा रहे हैं, मंदिर रिनोवेट कर रहे हैं, पूजा कर रहे, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो सारा आएगा। हिंदू समाज फिर मृत्युंजय के, सावरकर जी के शब्द है, मृत्युंजय की तरह से दोबारा खड़ा होगा। और वो खड़ा वही सावरकर जी की भविष्यवाणी भगवत ध्वज के नीचे खड़ा होगा। नमस्ते। प्रोटोकॉल और वी हैव अ प्रैक्टिस। हम लोग एक ऐसे एक प्रैक्टिस शुरू करती हैं स्वामी जी कि जो जिनको कोई नहीं खड़ा करता है, उन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। बहुत अच्छा। तो भाई ऐसे सूखे इलाके में जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम इस सूखे इलाके में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हैप्पी हारदा के भाईती जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने लाखों किसानों को एक करके औद्योगिकरण करने का एक बड़ा बीड़ा उठाया। वो भी बड़े सूखे एरिया से काम कर रहे हैं, हारदा से मध्य प्रदेश। हाँ जी। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो एक अपने अपने क्षेत्र में एक एक कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं। और वो सब कुछ भारत की इस इकोनॉमी को, भारत की नींव को मजबूत करने का काम सभी कर रहे हैं। किसान हमारे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हम किसान प्रधान देश भी है। और कहते हैं कि संतों की भी भूमि है, जहाँ किसान प्रगत कर रहे हैं आप लोग, और जहाँ साधु संत इकोनॉमी का इतना सोच रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो महाराज जी का ब्रेन चाइल्ड है, वो इतना व्याप्त और इतना व्यापक हो गया है। और महाराज जी की सोच, अगर एक संत इतनी सोच अगर किसी में इंस्टॉल कर दे तो जो भगवा झंडा के नीचे खड़े रहकर हम सब एकत्रित हो जाएंगे, वो सपना बहुत दूर नहीं है। मैं स्वामी जी से बहुत दिल से, कार्यक्रम में बहुत सारी तब्दीली हुई। पहले वेन्यू चेंज हो गए 2-3, फिर डेट्स चेंज हो गए और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। स्वामी जी 31 को आने वाले थे, हमको लगा 30, और वो सब में बहुत से गेस्ट आ नहीं पाए थे क्योंकि प्री शेड्यूल उनके कुछ कार्यक्रम थे। तो जो भी आए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। बट आई वांट टू मेंशन फ्यू नेम्स हियर।
those who morally really stood by us during all the journey of afternoon and my writing. क्योंकि पत्रकारिता करते करते बुक्स लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि डेडलाइन के साथ चलना है और यहाँ पे कोई डेडलाइन ही नहीं होती है, तो दोनों लाइंस को लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क है। और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त मेरे पे ये है कि हम लोग एक आश्रम चलाते हैं कल्याण में, जिसका नाम ही कल्याणेश्वर महादेव आश्रम है। वहाँ पे आदिवासी बच्चों को हम वेद सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत सारे अनाथ बच्चों को मैंने अडॉप्ट करके रखा है, वो पढ़ रहे हैं, कोई मेडिसिन कर रहा है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन वो सारी जिम्मेदारियों को लेके चलते वक्त सावरकर जी को जब मैं लिख रही थी, मैंने कहा ये बालगुरु हमको बचपन से ही मिलता है। हमारे यहाँ पे हम गाने बचपन से ही सुनते हैं, और आप गिरगांव में जाके किसी भी बच्चे से तात्या का कोई भी गाना सुनने को कहोगे तो वो सुना देगा आपको। तो ये जब मैं लिख रही थी तो मेरे दिमाग में चारों नेत्रा की ही जनरेशन थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये जनरेशन समझे कि ये आज़ादी इतनी मुफ्त में और इतनी सस्ती नहीं मिली थी, और मिलने के बाद भी आज और एक आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। वो आज़ादी है हमारे अस्तित्व की, और उस अस्तित्व की लड़ाई को लड़ते वक्त जैसे स्वामी जी ने 5 चीज़ें बताई सावरकर जी की जो सोच थी उस बारे में, उसकी तरफ भी हम अग्रसर हो ही रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक जन, आप में से जो जितने भी लोग टी शर्ट पहने हैं मी सावरकर, ये एक्चुअली सिर्फ टी शर्ट पहनना नहीं है, आप अपने अंदर सावरकर को उतारिएगा। एक पल के लिए सोचिएगा कि आप सावरकर जी के कौन से एक गुण को आत्मसात करके इस देश को एक उंगली थाम कर आगे ले जा सकते हैं। और मेरे बुक लिखने का प्रयास भी सिर्फ यही है, इसलिए आप सब आए, ये बातें सुने, इस सब के लिए मैं आप सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे गिरगांव से भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत से पत्रकार हैं। इतनी व्यस्तता में भी पत्रकार लोग, उनको भी बहुत दिक्कत हुई। 3-4 शिफ्ट थे, पहले प्रेस क्लब में रखा था, सब वहाँ के वहीं थे, काफी लोग थे। 150 पत्रकारों ने आपसे मिलने का बिल्कुल इच्छा जताई। हम मिलेंगे उनसे। क्या मैं बेंगलोर से आ रहा था, मैंने कहा उधर जाऊंगा तो 1 घंटा ट्रैफिक का पता नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। बिल्कुल। तो टॉपिक के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है जो यंगर जनरेशन को पढ़ना चाहिए, तो शायद अगली किताब हम वही करेंगे। I would like to thank everyone, my team, the hotel staff of this होटल का जो स्टाफ था एवियन का, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही समझदार, और जैसे जैसे बताया था उन्होंने अर्जेंसी में एक दिन का। थैंक यू एवरीवन, माय टीम टू एवरीवन। ऐसा है, मैं बाहर था, मैसेज आया कि सावरकर जी का बुक रिलीज करना है, तो मैंने कहा मैं अक्टूबर में, मैंने कहा मैं तो धक्का खाने वाला आदमी हूँ, पता नहीं कहाँ कब क्या हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने सब अपना डायरी देखा, तो मैं 31 तारीख को मैंने कहा मैं मुंबई पहुंच रहा हूँ नहीं पहुंच रहा हूँ। फिर मैंने इनको बोला कि 31 को, मैं कहा देख लो, मैं एयरपोर्ट से आने जाने में मुझे कम से कम, इसलिए मैंने इनको बोला था मैं 8 निश्चित करता हूँ, जो फ्लाइट बुक किया था कि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और मैं यहाँ 7:37 पर आ गया था। हाँ, इंडिगो नहीं लिया था, एयर इंडिया लिया था। इंडिगो लेता तो भरोसा नहीं था ना, एयर इंडिया लिया था। इसलिए क्या लेस कमिटमेंट इन्होंने पहले बताया कि प्रेस क्लब में करेंगे, मैंने देख जो बोला आज हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जनरेशन को, सावरकर जी को आज के लिए कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की उन्होंने, आज उसकी जरूरत है, उसके बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज के जनरेशन को पता लगना चाहिए, और मैं वैदेही जी को धन्यवाद, तो ये लोगों को प्रेरणा मिलेगा, ये आवश्यक है। इसलिए सावरकर जी का बात आज भी उतना ही रिलेवेंट है जो उस समय, जैसे मैंने अपने लेक्चर में बोला कि सावरकर जी ने उसे कहा कि अंडमान द्वीप को हमारा नेवल बेस बनाना चाहिए। भारत सरकार अब सोच रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना से पीछे हो गए ना,
चाइना हमसे आगे निकलेगा, दैट बिकम चाइना बिकम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। अब भारत सरकार को दृष्टि है कि हमें बिना भी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है, तो वैसा दृष्टि है तो वैसा सोच होगा, तो ये सब बहुत ही आवश्यक है। सर, तो सावरकर साहब को जो देशद्रोही मानते हैं उनके लिए क्या नसीहत देना चाहेंगे? जो ऐसा है जॉन्डिस जो है ना, जॉन्डिस, इस बात को उन्हें समाज के लिए, यंग जनरेशन के, प्रेजेंट जनरेशन के लिए सामने उस चीज को रखा, इनको बहुत धन्यवाद। लास्टली सर, कंट्री के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं बोल कर रहा हूँ कि आज भी कंट्री के लिए मैसेज जो आज भी हर समय हमें रिलेवेंट है, सावरकर जी की बात है कि राजनीति का हिंदूकरण कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद 1871 में आप एक्ट लगाया कि हिंदुओं को निशस्त्र कर दो, निशस्त्र कर दो, 2 जनरेशन में डरपोक पैदा होंगे, पहले हमारे को लड़ जाते थे, वही परिणाम है। आज भी जो भी सरकारें थी आज भी उसको कंटिन्यू कर रहा। मैं आज बोल रहा हूँ, आप लिखना कि भारत को अगर लिखना बहुत ज़रूरी, खासकर इस विषय को। और रही बात स्वामी जी की, तो मैं स्वामी जी के लिए 1 साल वेट किया ताकि उन्हीं के हाथ से विमोचन कराऊँ, और आज स्वामी जी ने, उनकी कृपा हुई और ये बुक लॉन्च हुआ। लेकिन बहुत गर्व का विषय ये है कि मैंने तो किताब लिखी थोड़ा बहुत ही यंग जनरेशन को एक नींव डालने के लिए, लेकिन आज स्वामी जी ने जो बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ लिखना बाकी है और सफ़र अभी और जारी है। तो शायद अगली बुक जो स्वामी जी ने कहा है वो 5 पॉइंट को एलैबोरेट करके मैं लिखना चाहूँगी, तो इसका पूरा श्रेय स्वामी जी को। मैम, सावरकर सर के लिए जो जहाँ पे काला पानी की सजा थी, क्या आप वहाँ पर भी आपने विजिट किया? मैं विजिट किया, हम लोग अंडमान में कम से कम 21-22 दिन रहे और वहाँ के बहुत पुराने लोगों से भी बातें की। मैम, अगली बुक जो है कौन से क्रांतिकारी पे आप लिखेंगे? आगे आने वाले समय में आपकी सफर की शुरुआत हो गई? मैंने अभी कहा था कि सावरकर जी को मैंने कम्प्लीटली लिखा नहीं, ये मुझे इसका अनुभव अभी हुआ, और अगली बार जो बहुत वैलिड टॉपिक आज स्वामी जी ने चर्चा की उसके ऊपर ही। काफ़ी सर, आप तो आश्रम चलाती हैं जो निराश चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं, और ये बच्चे हर तबके के हैं, कोई गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, कोई जिनके माँ बाप शिक्षा मांगते हैं रास्ते पे, कोई अनाथ है, तो वहाँ आ जाते हैं बच्चे। से कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, लेकिन जो आते हैं उनके लिए घर है वहाँ पे, और जो खाना चाहते हैं उसके लिए भोजन, और जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई है। थैंक यू। में मिली, इसलिए इनके नाम में लिखा डॉक्टर वैदेही नागपुर। मुझे पता नहीं था कि ये मुंबई की है। नहीं, मैं नागपुर की हूँ, मैं पली बड़ी मुंबई। अच्छा। हाँ जी, दोनों बराबर। क्योंकि मैं तो आपके वही कार्यक्रम में एक बार मिला था। नहीं, 2 बार नहीं, अच्छा, हिंदू फोरम में भी मिले। अच्छा, मेंबर। थैंक यू। हाँ।